Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome, my dear sisters. How are you, Chand auntie, and how are you, my dear friends and my dear sisters? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Chand auntie is speaking on behalf of all of you. So we start with the dua, inshallah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'ad. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي زدني علما ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. We start with Darud Ibrahim. Over to Chand auntie. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا باطلا وارزقنا اجتنابه. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Once again, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. We are studying para number 1, Surat Al-Baqarah. हम सूरत अल-बकरा शुरू कर चुके हैं और सूरत अल-बकरा कुरान पाक की सबसे लंबी सूरा है. Also, we have studied the benefits of Surat Al-Baqarah, the ahadith. Chand auntie, if you could share the benefits of Surat Al-Baqarah and read them for us. It would be a quick revision. Yeah. Hadith का मफ़हूम है आप Shall I read? Yeah, please. हदीस का मफ़हूम है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सूरत अल-बकरा और अल-इमरान सीखो, ये दोनों नूरानी सूरतें हैं, अपने पढ़ने वालों पर साहिबान या बादल या परिंदों की झुंड की तरह कयामत के दिन साया करेगी. हदीस ओवर. Ameen. See, we have a poster on the screen and there are benefits of Surat Al-Baqarah from the hadith. Number 1, its recitation is a means of blessing. That means Surat Al-Baqarah padhne mein barakat hai. Protection from shayateen. Protection from magic. Abandoning it is a cause of grief. यानी जो सूरत अल-बकरा नहीं पढ़ेगा तो कयामत के दिन उसके लिए क्या होगी? हसरत होगी, वो पछताएगा. Houses where Al-Baqarah is not recited are like graveyards. अपने घरों को मकबरा न बनाओ, क्योंकि जिस घर में सूरत अल-बकरा पढ़ी जाती है उस घर में शैतान दाखिल नहीं हो सकता.
तो इतनी जबरदस्त सूरा है और इसे हमने पढ़ना शुरू किया था. क्विक रिवीजन. सूरत अल फातिहा में हमने अल्लाह ताला से क्या मांगा? We asked for guidance from Allah subhanahu wa ta'ala. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. या अल्लाह, please guide us upon the straight path. सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम. आप सोचोगे सूरत अल बकरा से वापस सूरत फातिहा पे क्यों गए रिवर्स में? तो क्विक रिवीजन, बिकॉज ये सब कुछ कनेक्टेड है जो आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. सो जस्ट रिफ्रेशिंग आवर माइंड्स कि हमने अल्लाह से हिदायत मांगी, गाइडेंस मांगी. क्या सिर्फ एक बार मांगी? नहीं. हर नमाज की हर रकत में, एवरी प्रेयर इन एवरी सला वी आस्क फॉर गाइडेंस. तो गाइडेंस सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम. या अल्लाह, हमें उनका रास्ता दिखा जिस पर तूने इनाम किया. किस पर अल्लाह ने इनाम किया? अल्लाह ताला, kindly share that poster what Zara has made. Chanda aunty please. हाँ, so अल्लाह ताला ने किस पर इनाम किया है? इनाम number 1 upon the prophets and nabiyina. Number 2 upon the, one minute, yeah, you can see it on the screen. And amta alayhim कौन है? Number 1 the prophets and nabiyin, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम नबियों पर अल्लाह ने इनाम किया. Number 2 the सिद्दीकीन. Who are the सिद्दीकीन? The truthful ones, जो हमेशा सच बोलते हैं. Number 3 the शुहदा. शुहदा the martyrs, जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी अल्लाह की खातिर. And number 4 the स्वालिहीन, the pious ones, नेक लोग. तो हमने क्या पढ़े कि अल्लाह ताला इन सब पर अल्लाह का इनाम है. So, अल्लाह हमें इन्हीं के रास्ते पे चला. Us follow only these people, है ना? क्या इनाम किया अल्लाह ने इन पर? अल्लाह ताला ने इन पर क्या इनाम किया? What was the gift? The gift of the knowledge of Quran, the knowledge of Islam. Islam, दीन इस्लाम का इल्म, उसकी मारिफत. तो जब हम अल्लाह ताला से ये मांगते हैं सूरत अल फातिहा में और उसके बाद इसे कि अल्लाह गैरिल मगदूबी अलैहिम वलद्दौलिन, हमें उनके रास्ते पे ना चला जो जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ, जिनसे तू नाराज हुआ और जो भटके हुए लोग हैं. People, those who do not have the knowledge of Islam, knowledge of Allah's book, तो हमें उनके रास्ते पर ना चला. Then we began with सूरत अल बकरा. सूरत अल बकरा में अल्लाह ताला ने हमें हिदायत का इंट्रोडक्शन दे दिया कि हिदायत कहाँ है? कुरान में, isn't it? There is no doubt about it कि कुरान is the book of Allah and there is guidance for al-muttaqin. Then we are going to study 3 categories. We are going to study 3 categories of people. Who are these 3 categories? You can see it on the screen. 3 types of people. First type we have studied al-muttaqin. कौन है al-muttaqin? The Allah conscious people, the pious people. कौन है ये? Anam, what did you study about the al-muttaqin? Those who refrain from doing bad deeds, जो बुरे कामों से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं. And who a muttaqin is a person of actions and a person of deed. Okay, alhamdulillah. So Anand, kindly share the screen first. The 3 types of people. Yeah. Okay. Shall I say the muttaqina who? Yes, please. जो गैप पे यकीन लाते हैं, कायम करते हैं सलात नमाज और wait Chananti, 1 minute, we'll go one by one. You're right, you're on the right track. So muttaqin की 5 qualities we have studied in the first 5 ayat of the
Surat Al-Baqarah. So the first quality is, yeah, now tell me. The first quality is they believe in the गैब, unseen. unseen. वो गैब पर ईमान लाते, unseen पर. Very good. Number 2, कायम करते हैं सलात, नमाज. हाँ, वो कायम करते हैं नमाज. They establish the prayer. Number 3, जो रिस्क अल्लाह ने अता किया उनको, उसमें से वो खर्च करते हैं. yeah, they share the provisions that Allah has bestowed upon them. Right. And number 4, वो ईमान लाते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और जो किताबें पहले जो दी गई थी, लाइक तौरात, इंजील एंड जबूर. हाँ, उन सब पर भी ईमान लाते हैं. Yes. And number 5, वो आखिरत पर नजर रखते हैं, यकीन रखते हैं. हाँ, उनका आखिरत पर यकीन होता है. Right. Alhamdulillah. So we studied about muttaqin. They are conscious of Allah. After that we studied the next category. अच्छा, ये मुत्तकीन जो हमने पढ़ा, तो कितने लोगों ने कोशिश की कि हम भी अल्लाह की नजर में मुत्तकी बन जाए? How many of us have tried? क्या हमने कोशिश की कि हम अल्लाह कॉन्शियस हो जाए? यस शाहीन. अस्सलामु अलैकुम. वालेकुम सलाम. अल्लाह का लाख लाख शुक्र है पहले कि अल्लाह ताला ने इस्लाम जैसे मजहब में पैदा किए. दूसरी बात, अल्लाह का करम है अल्हम्दुलिल्लाह कि आम दिन में बहुत कोशिश रहती है कि हो सके उतना रिफ्रेन करे अपने आप को, और जब ये नॉलेज मिल रहा है तो और ज़्यादा इसकी तरफ माइंड फोकस रहता है कि कहीं अपने से गैर गलत अल्फाज ना ही निकल जाए, कोई गैर गलत काम नहीं हो जाए. सो पूरी कोशिश ये रहती है कि सही रास्ते पर, सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर हम चलने की कोशिश करें इंशाअल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. जी तबस्सुम, आप बोलिए. तबस्सुम, आपको अनम्यूट करना होगा. Can you unmute yourself, तबस्सुम जफर? No problem. ओके, तो हमने पढ़े कि मुत्तकीन के लिए फायदा क्या है. मुत्तकीन के लिए फायदा क्या है? They are जी successful चांद आंटी. in this life Yes. also and in akhirat also. Because Yes, they are mashallah. focused on akhirat, they get dunya bonus में. Yes, exactly. This is what we studied. That there is 200% success for those who are Allah conscious, और जो इन 5 अल्लाह ने जो फरमाया उस पर वो अमल करते हैं every day 24/7, है ना. फिर हम लोग आए नेक्स्ट आयत पे. आयतों की तिलावत आज हो गई क्या आंटी? नहीं की है ना हमने? नहीं हुई है. नहीं हुई है, तो पहले हम तिलावत कर लेते हैं, then we come to the second category and then to the third category inshallah. So over to Chand aunty for the tilawat. Co-host, kindly clear the screen please. Thank you. तिलावत होगी, हम सब मिलकर तिलावत करेंगे. सब मिलकर पढ़ लीजिए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. चांद आंटी स्क्रीन ब्लैंक है. We cannot hear it, Chand aunty. So when you are ready with it, just tell me. Until then, I'll continue. चांद आंटी आपको फिर से स्क्रीन शेयर करना होगा. Can you hear me?
मेरी आवाज आ रही है अनम? Is there any issue? I'm able to hear you. Okay, so Chand aunty will have to refresh the screen and then once again share the screen. Until then I'll continue. Yeah. So next category हमने पढ़े वो है अबाउट काफिरीन. हाँ, अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि द सेकंड कैटेगरी वो है जो अल्लाह सुब्हानहू ताला पर ईमान नहीं लाते. क्लियरली स्ट्रेट अवे दे से दैट वी डोंट बिलीव, और वो ईमान नहीं लाते ना अल्लाह पर, ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, ना आखिरत के दिन पर. एंड दे डोंट बिलीव, चाहे आप उन्हें कितना ही डराओ, कितना ही खबरदार करो या ना करो, वो ईमान लाने वाले नहीं. ऐसे लोगों को क्या कहा जाता है? काफिरीन. और अल्लाह ताला ने क्या फरमाया उनके लिए? क्या है? अजाबुन अजीम. ये हम पढ़ चुके लास्ट क्लास में. आई एम जस्ट रिवाइजिंग. There is some issue there with Chand aunty. Yeah, I'm trying. I don't know why it is not coming. When you hear, please just let me know, beta. Yeah. Okay, we are waiting. No problem. So second category किसके बारे में पढ़े हमने अनम? Disbelievers, काफिर. हाँ, disbelievers काफिरीन. They clearly say that हम ईमान लाने वाले नहीं. ईमान का मतलब हमने क्या पढ़े थे लास्ट क्लास में? मान जाना. ईमान का मतलब क्या है? मान जाना. तो ये लोग उसके ऑपोजिट होते हैं और जिसको काफिर कहते हैं. और कफर का मतलब ही होता है इनकार करना. तो कफर इनकार करना, काफिरून इनकार करने वाले. अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिकॉज इनको कितना ही डराओ या ना डराओ, ये ईमान लाने वाले नहीं, तो उनके लिए क्या है? अजाब है अजीम, बहुत बड़ा. व्हाट इज दिस अजाबुन अजीम? ये पनिशमेंट है जो आखिरत में होगी, जहन्नम दोजख में होगी, जहन्नम में होगी, इन द hellfire. It will be a biggest punishment. Yes, auntie? Yeah, I'm still trying. No problem. Whenever you are ready, tell us, okay? If you hear, let me know. Yeah. I ours? No, Chand aunty can't hear it. I don't know why today it is not coming. It's showing my screen is not able to share. I'm starting, no problem. आई आवाज? नहीं. अनम आवाज आई? नहीं aunty. नहीं? No, not able to hear. Okay, so there is some problem with this sharing today. One minute. I'll try for the last time, otherwise we will do it orally, inshallah. Now? No. Can't hear. No. Okay. No problem. ठीक है. चले, so we will do it ourselves इंशाल्लाह. अल्लाह ताला चाहते हैं कि हम खुद ही तिलावत करें, तो हम तिलावत करेंगे इंशाल्लाह सूरत अल बकरा आयत नंबर 1 से. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अलिफ लाम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि
ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. आयत नंबर 6 वी कम टू आयत नंबर 6 हम पढ़ रहे थे सेकंड कैटेगरी इन्नल्लज़ीना कफरू बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया इनकार किया सवाउन बराबर है अलैहिम उन पर अअंज़रतहुम चाहे आप डराए उनको अम या लम नहीं तुनज़िरहुम या नहीं आप डराए उनको ला युमिनून नहीं वो ईमान लाने वाले। यहाँ तक हमने पढ़े थे। क्या आप में से कोई नोट्स बनाते हैं? आप लोग नोट्स बनाते हो? जी हाँ। जरा है यस यस मेहरीन आप नोट्स बनाते हो? हाँ जी बनाती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो वर्ड टू वर्ड के मीनिंग्स भी लिखते हैं या आप लोग सिर्फ तफसीर के नोट्स बनाते हो? सो उम्मीद है कि आप लोग वर्ड टू वर्ड भी लिखते हो और ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। सो आज स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है, हम लोग यही देखेंगे इंशाल्लाह। आयत नंबर 7 पे आएंगे कि ये जो उन्हें कितना ही डराओ या ना डराओ वो ईमान लाने वाले नहीं, सेकंड कैटेगरी जो इनकारी है। आयत नंबर 7 में अब अल्लाह ताला क्या फरमाते, इनकी पनिशमेंट क्या है। इनके लिए दो पनिशमेंट है, एक दुनिया की और एक आखिरत की। दुनिया की क्या है देखिए, खत्म अल्लाहु, खत्म मुहर लगा दी अल्लाह ने, सील कर दिया अल्लाह ने। अल्लाह है सील्ड, इंग्लिश में जो वर्ड है SEALED, सील्ड, खत्म मुहर लगा दी। देखिए एक लॉक होता है, हम लोग दरवाजे पे लॉक लगाते हैं, और एक होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से या बैंक की तरफ से वो आकर सील कर देते, तो उस सील की चाबी किसी के भी पास नहीं होती। तो ये सील किसका है? ये अल्लाह का सील है। अल्लाह ताला फरमाते हैं खत्म मुहर लगा दी, खत्म कर दिया हमने। ये भी हमारे समझने के लिए है, किस पर अल्लाह ने मोहर लगा दी, सील लगा दी। अला कुलूबिहिम, अला का मतलब है ऊपर, अपॉन, किसके ऊपर? कुलूबिहिम, कुलूब यानी हार्ट्स, हिम यानी उनके, उनके हार्ट्स पर। किन के हार्ट्स पर? अभी बात किसकी हो रही है? काफिरीन की। तो जो कुफ्र करते हैं, इनकार करते हैं, उनके दिलों पर। कुलूब इज द प्लूरल ऑफ कल्ब, कल्ब कहते एक दिल, और कुलूब इज द प्लूरल, सो देयर हार्ट्स, अल्लाह सील्स देयर हार्ट्स, अल्लाह ने उनके दिलों पर मुहर लगा दी। वो का मतलब क्या है? और एंड, और किस पर मोहर लगाई, सील कर दिया? अला समइहिम, उनके कानों पर। सम कहते हैं कानों को, द हियरिंग पावर, सुनने की ताकत। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं और मोहर लगा दी हमने किस पर? उनके कानों पर, अपॉन देयर ईयर्स, उसको भी सील कर दिया। व अला अबसारिहिम, और ऊपर उनकी आंखों के। अबसार में बसारत वर्ड है, आप देखिए, बा स्वाद रा, बसार, अबसार, अबसार भी क्या है? प्लूरल है। उनकी आंखों पर गिशावतुन, एक पर्दा डाल दिया। गिशावतुन, एक पर्दा डाल दिया। पर्दा हम कहाँ डालते?
खिड़की या दरवाजे पर, बट आंखें भी तो हमारी खिड़कियां है ना। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया, अ कर्टन रेज्ड अपॉन देयर आईज। ऑलरेडी हमारी आंखों पर हमारी जो आईलिड्स है ना, आंखों की जो पपड़ियां है आईलिड्स, वो भी क्या करती है, कर्टन का ही काम करती है। सो थ्रू आउट द डे वी ब्लिंक आवर आईज, हमारी आंखें हम लोग फड़फड़ाते रहते हैं नेचुरली, बट अल्लाह ताला फरमाते हमने एक पर्दा डाल दिया उनकी आंखों पर एज अ पनिशमेंट। ये तो क्या हो गई दुनिया की पनिशमेंट, कि दिलों को भी सील कर दिया, आंखों को सॉरी कानों को सील कर दिया और आंखों पर पर्दा डाल दिया। और क्या है आखिरत की पनिशमेंट, वलहुम अजाबुन अजीम, और उनके लिए अजाब है, अजाबुन एक अजाब, वन पनिशमेंट, अजीम सबसे बड़ी, अजीम सबसे बड़ी, बिगेस्ट पनिशमेंट इन द आखिरा, इन द हियर आफ्टर, फॉर whom, फॉर दोज हु डोंट बिलीव। What does this mean? Why would Allah seal their hearts and their ears, and why would Allah cover their eyes? Because ये ears, eyes and hearts, what are they? They are our sensory organs, है ना? Like on our face we have eyes, ears, nose and your tongue. These are your sensory organs on your face, and the receptor of all this is your heart. तुम्हारा दिल जो है ना वो इन सबको महसूस कर सकता है। तो क्योंकि इन्होंने अल्लाह को मानने से इनकार कर दिया, तो क्या इनको हिदायत मिलेगी? इज देयर एनी चांस कि इनको हिदायत मिले? नो चांस, नो चांस। और अल्लाह ताला ने इनके ये सारे चांसेस जो है ना वो बंद कर दिए, सील कर दिए, कि जहां से हिदायत मिलने का ये जरिया होता है। क्या है हिदायत मिलने का जरिया? हमारी आंखें, हमारे कान और हमारा दिल। और हिदायत किसको मिलती है? वी स्टडीड इन द लास्ट क्लास कि हिदायत हर एक को नहीं मिलती, हिदायत तो मुत्तकी को मिलती है, इजंट इट? तो मुत्तकी की फर्स्ट क्वालिटी हमने पढ़े थे कि वो ईमान लाता है, और काफिर की फर्स्ट क्वालिटी हमने क्या पढ़े, उसका ऑपोजिट, कि वो ईमान नहीं लाता। ऑपोजिट हो गए दोनों, isn't it? Yes. तो अगर ईमान ही नहीं है तो मुत्तकी की सेकंड क्वालिटी क्या पढ़े? वो नमाज कायम करता है, बराबर? करेक्ट। तो काफिर तो ईमान ही नहीं लाया, तो क्या वो नमाज पढ़ेगा अनम? नो, नहीं, वो नमाज ही नहीं पढ़ेगा। तो वन हु डजंट प्रे, डजंट बाउ डाउन टू अल्लाह, तो क्या वो सूरत अल फातिहा पढ़ेगा? नहीं। सूरत अल फातिहा नहीं पढ़ी तो क्या वो हिदायत मांगेगा? नो, बिकॉज हिदायत मांगने पर ही मिलती है। यस। तो जो सूरत अल फातिहा ना पढ़े, जो अल्लाह पे ईमान न लाए, जो नमाज न पढ़े, तो क्या उसको हिदायत मिलेगी? नहीं मिलेगी। सो दिस इज अ सिंपल फॉर्मूला। और इसीलिए जिसको अल्लाह हिदायत ही ना दे, वन whom Allah doesn't guide, then Allah seals all these pathways of guidance. Got it? Or let me try sharing the screen once again. One minute. No, there is some issue today. Anyways, recording तो हो रही है। हाँ, so coming back to our ayat, कि ये हिदायत मांगते भी नहीं और इनको हिदायत चाहिए भी नहीं, तो अल्लाह ताला ने इनके हिदायत के सारे रास्ते बंद कर दिए। दैट मीन्स क्या अल्लाह ताला उनके कानों को बंद कर देंगे? अब क्या उनको कभी सुनाई नहीं देगा, कभी दिखाई नहीं देगा? नो, वो नॉर्मली दे कैन हियर, दे कैन टॉक, दे कैन सी। उनके हार्ट भी अल्लाह ताला ने धड़कना बंद नहीं किए, बट गाइडेंस का रास्ता बंद कर दिया।
समझ में आया? अब हिदायत नहीं मिलेगी, तौफीक नहीं मिलेगी। ये दिस इज नॉट द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी, दिस इज एंड ऑफ द स्टोरी। हम बोलेंगे कि अगर अल्लाह ने उनका रास्ता बंद कर दिया है हिदायत का, तो फिर वो बेचारे क्या करे? तो नहीं, वो उनको अल्लाह ताला खूब अपॉर्चुनिटीज देते हैं, और उनको क्या, हम सबको अल्लाह ताला हम सबको रोज हिदायत के अलग अलग रास्ते खोलते हैं। बहुत सारे तरीकों से अल्लाह ताला हमें हिदायत देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर इंसान अल्लाह का को मानने से ही इनकार कर दे और इंसान ही काफिर बन जाए, तो फिर अल्लाह ताला को भी कोई जरूरत नहीं है उसके ईमान लाने की और उसे हिदायत देने की। जैसे एक क्रिमिनल होता है, लाइक आई बीइंग अ लॉयर आई नो कि अगर एक चोर है समझो फॉर एग्जांपल, तो उसने चोरी की, कई बार वो चोरी करता है, और फिर एक बार अगर कभी पकड़ा गया, वंस द thief is being caught by the police, तो फिर उसे कोर्ट में पेश किया जाता है in front of the judge in the court, और फिर उसके ऊपर पूरा केस चलता है, मुकदमा होता है, फिर सबूत एंड गवाह एंड ऑल द प्रोसीजर, एंड पूरा प्रोसीजर कोर्ट का प्रोसीडिंग्स होने के बाद इन द एंड वो जो जज है, वो जज साहब फिर एंड में अपना फैसला सुनाते हैं, और फिर उसे या तो सजा होती है, जेल होती है, या अगर उसने चोरी नहीं किया है ये साबित हुआ तो फिर उसे रिहा कर दिया जाता है। तो दिस इज जजमेंट कब सुनाया जाता है? बाय द एंड ऑफ द प्रोसीडिंग। वैसे ही यहाँ पर भी जजमेंट अल्लाह ताला ने इनके बारे में क्या पास किया कि अब इनको न सुनाई देगी कोई हिदायत, यानी अल्लाह की बात इनको सुनकर भी समझ नहीं आएगी, देख कर भी हिदायत नहीं मिलेगी, और दिलों में भी वो महसूस नहीं होगी। दिस इज द फाइनल जजमेंट, बहुत सारे मौके देने के बाद। गॉट इट? एंड देन इन द एंड अल्लाह ताला सेज वलहुम अजाबुन अजीम। ये तो दुनिया में मोहर लगा दी थी, आखिरत में क्या होगा? आखिरत में बहुत बड़ा अजाब होगा। अजाब कहाँ होता है, जन्नत में या दोजख में? कहाँ होगा अजाब? दोजख में, यानी काफिर फिर दोजख में ही जाएगा, ये उसका अंजाम होगा। दुनिया में भी बुरा अंजाम और आखिरत में भी बुरा अंजाम। फॉर एग्जाम्पल, चोर ने अगर चोरी की, तो अगर वो नहीं भी पकड़ा गया तो पूरी जिंदगी वो खौफ में रहता है, इज ऑलवेज स्कैर्ड एंड ऑलवेज कॉन्शियस कि कब मुझे आके पुलिस पकड़ लेगी, तो वो डरता ही फिरता है। और फिर जब पकड़ा जाता है तो फिर उसे जेल होती है, पनिशमेंट होती है दुनिया में भी, एंड आखिरत में भी अल्लाह ताला उसे पनिश करेंगे। तो व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन देन? अल्लाह का हुक्म मानकर मुत्तकी परहेजगार बनना या काफिर बनना? मुत्तकी बनना है इंशाल्लाह, है ना? एंड देन वी मूव ऑन टू द थर्ड कैटेगरी, आयत नंबर 8, वमिनन नासी। आयत नंबर 8, और इंसानों में से, वमिनन नासी, इंसानों में से। अन्नास वर्ड देख रहे हो आप आपके कुरान में? अन्नास में इंसान वर्ड नजर आएगा, अन्नास इंसान। तो इंसानों में से, मैं यकूलू, मन यानी जो, whoever, from amongst the human beings, मन जो, यकूलू वो कहे, one who says, आमन्ना ईमान लाए हम, बिल्लाही अल्लाह पर, we believe in Allah, वबिल यौमिल आखिरी और आखिरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, यहाँ पर माँ जो है ना वो नहीं के फॉर्म में, और नहीं वो ईमान लाने वाले, वो मोमिन नहीं है। आयत नंबर 8, once again we will do it. Allah Ta'ala says in ayat number 8, वमिनन नासी, and from amongst the human beings, मैं यकूलू जो वो कहता है, आमन्ना ईमान लाए हम,
बिल्लाही, अल्लाह पर। ये एक थर्ड कैटेगरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट कैटेगरी कौन थी? मुत्तकीन। नंबर 2 काफिरीन। नंबर 3 वी आर कमिंग टू मुनाफिकीन। ये मुनाफिकीन के बारे में है। कौन है मुनाफिकीन? हिपोक्रिट्स, धोखेबाज, डबल स्टैंडर्ड्स। इनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इंसानों में से जो ये कहते हैं, from amongst the human beings, those who say, what do they say? आमन्ना, ईमान लाए हम। We believe, बिल्लाही, किस पर ईमान लाए हम? अल्लाह पर, है ना? ये तो समझ में आता है ना? वबिल यौमिल आखिरी, और किस पर ईमान लाए हम? आखिरत के दिन पर। यौम कहते दिन, आखिरी यानी हम पढ़े थे आखिरत के दिन पर हम ईमान लाए। लेकिन वो तो ये कहते हैं, लेकिन अल्लाह ताला क्या कहते हैं? वमा हुम बिमुमिनीन, अल्लाह ताला फरमाते हैं नहीं वो सब ईमान लाए। क्यों? क्योंकि ये झूठे हैं। नाउ द थर्ड कैटेगरी इज, प्लीज नोट डाउन, फर्स्ट कैटेगरी मुत्तकीन की थी, सेकंड काफिरीन की थी, अब थर्ड कैटेगरी में हम पहुंचे कि ऐसे टाइप के लोग भी होते हैं। ये कौन होते हैं? ये मुनाफिक है। यहाँ पर मुनाफिक वर्ड अभी नहीं आया है। पूरे कुरान में एक पूरी सूरा है, सूरत अल मुनाफिकून, और इनका जिक्र बार बार आएगा। ये कौन है? ये कहते तो है जबान से, विद देयर माउथ दे प्रोक्लेम दैट दे आर मोमिन, दैट वी बिलीव इन अल्लाह एंड आखिरत, but in their hearts there is no iman, there is no belief in their hearts. ये है मुनाफिक। Why do they say then? Why do they say that we believe and actually they don't believe? Why like that? Because रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना तशरीफ लाए हिजरत करके, तो मदीना में जो लोग थे उन लोगों ने देखा कि जो लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं उनका बड़ा फायदा हो रहा है इस्लाम कबूल करने की वजह से, और बड़ी इज्जत मिल रही है, और जंग भी जीत रहे हैं, तो माल भी मिल रहा है। तो दे कुड सी द external benefits of Islam. So they also wanted to be a part of Muslim community. तो वो ईमान तो ले आए, बट जब देखे कि सिर्फ ईमान लाने से बात नहीं बनती है, अमल भी करना पड़ता है। अजान होती है तो नमाज भी पढ़नी पड़ती है, फिर रमजान आता है तो रोजे भी रखने पड़ते हैं, और ज़कात भी देनी पड़ती है, और बीइंग अ मुस्लिम अल्लाह का हर हुक्म मानना पड़ता है। तो ये जो कच्चे ईमान वाले लोग होते हैं कि जबान से तो बोल देते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन जब अमल की बारी आती है, जब इम्प्लीमेंटेशन की बारी आती है, दैट टाइम दे फॉल शॉर्ट, और वहां उनका ईमान कम पड़ जाता है, अमल नहीं कर पाते। ये होते हैं मुनाफिक। और मुनाफिक भी 2 टाइप्स के होते हैं, वी विल कम टू दैट। सो Allah subhanahu wa ta'ala says in this ayat that they just pretend to be मोमिन, they pretend to be the first category कि हम तो मुत्तकी है, हम मोमिन है, but in their heart they are the second category. Got it, Chandanti? Yes, जी हाँ। हाँ, they pretend to be in the first category. कौन सी फर्स्ट कैटेगरी? दैट के ईमान लाए हम लोग। यस, हम ईमान लाए, हम मुत्तकी है, हम मोमिन है, राइट, और हम ईमान वाले हैं, बट उनके दिलों में वो कौन सी कैटेगरी में आ जाते हैं? काफिर की, इनकारी है। हाँ, इन देयर हार्ट्स दे डोंट बिलीव, सेकंड कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब वो ना पहली कैटेगरी में रहे ना सेकंड कैटेगरी में रहे,
इसलिए वो थर्ड कैटेगरी में आ गए। और वो थर्ड कैटेगरी ना मैंने बनाई ना आपने बनाई, वो अल्लाह ताला ने हमें बता दिया कि ये धोखेबाज है, ये हिपोक्रेट्स है। थर्ड कैटेगरी इज ऑफ हिपोक्रेट्स, मुनाफिकीन। एंड अल्लाह ताला टेल्स अस व्हाट इज इन देयर हार्ट, वी डोंट नो। सो अल्लाह नोज ना व्हाट इज देयर इन द हार्ट्स and what we hide and what we show. So Allah informs us about the secret of hearts, and that is they don't believe, and that means they are liars. ये झूठे हैं। हाँ, तो इनके बारे में हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस बता दी कि मुनाफिक कौन होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said there are 3 signs of मुनाफिक। मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बोले झूठ बोले, जब बोले झूठ बोले, जब वादा करे वादा खिलाफी करे, और जब कोई अमानत रखी जाए तो अमानत में खयानत करे। Yes, Anam is able to share the screen. Alhamdulillah. There is some issue on my side also. Anam, you can even share this. I will send you some pictures. We have them on the group. You can share from there. So what are the signs of a munafiq? Yes, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, kindly repeat after me. Number 1, whenever he speaks, he tells a lie. Whenever he speaks, he tells a lie. Whenever he is entrusted, he proves to be dishonest. Whenever he is entrusted, he proves to be dishonest. Yes, and whenever he promises, he breaks his promise. Whenever he promises, he breaks his promise. Yes, ये सही बुखारी की रिवायत है। तो इससे क्या समझ में आता है कि मुनाफिक झूठा होता है, और वो सबसे बड़ा झूठ किसके साथ बोलता है? अल्लाह के साथ, कि अल्लाह में ईमान लाया बट उसके दिल में ईमान नहीं है, तो ये झूठा होता है। और उसके अंदर ये सारी खराबियां होती है कि वो उसके पास कोई चीज रखी जाए तो वो उस चीज में खयानत करता है, ऑनेस्ट नहीं होता, इज नॉट ट्रस्टवर्दी, और वो अपनी प्रॉमिसेस भी तोड़ता है, यानी अपनी जबान का, अपने ईमान का पक्का नहीं होता। तो he tries to cheat Allah as well as he tries to cheat people. अब ये कौन है? वो मुनाफिक, वो नहीं है मुनाफिक। हमें अपने आप को चेक करना है। आई हैव टू चेक माई सेल्फ एंड यू हैव टू चेक योर सेल्फ, कि क्या हम झूठ बोलते हैं? हम नहीं, मुझे चेक करना है कि मैं अंजुम, क्या मैं झूठ बोलती हूँ? अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो मैं कौन सी कैटेगरी में आ गई? ना मैं मुत्तकी की कैटेगरी में रही, और मैं काफिरीन में तो जाना ही नहीं चाहती। तो फिर क्या, अगर मैं झूठ बोलती हूँ तो इन विच कैटेगरी आई बिलोंग टू? अनम? The third category, which is मुनाफिक. एंड मुनाफिक तो झूठा है, धोखेबाज है, और वो अल्लाह को भी धोखा देता है। और आपको पता है, हम कुरान पाक में पढ़ेंगे कि ये मुनाफिक, ये सारे के सारे जहन्नम के सबसे निचले दर्जे में जाएंगे। they will fall into the lowest portion of the hellfire. अल्लाहु अकबर। जहन्नम का सबसे निचला हिस्सा, दैट मीन्स जहन्नम में जाएगा। और एक्चुअली तो वो मुनाफिक अपने आप को मुसलमान कहता है ना, मोमिन कहता है। दैट मीन्स मुनाफिक किस में से है फिर? मोमिनों में से या काफिरों में से? मोमिनों में से। मोमिनों में से। तो फिर हमें चेक करना है अपना ईमान, कि क्या हमारा ईमान भी सिर्फ जबान तक के लिमिटेड है? क्या मैं भी सिर्फ रोज बोलती हूँ कि हाँ मैं मुसलमान हूँ, और क्या मेरे अमल ऐसे हैं? क्या मैं झूठ बोलती हूँ? आप मुझे बताएं, हम में से कौन झूठ नहीं बोलता? हम लोग तो अपने बच्चों को ही ट्रेनिंग दे देते हैं पहले झूठ बोलने की। बच्चा जब तक नादान होता है ना, मासूम, until the child is very young,
अ चाइल्ड डजंट नो व्हाट इज अ लाई, वो कभी भी झूठ नहीं बोलता है। और फिर कोई हमारा कॉल आता है, बच्चे ने फोन उठाया, अंकल पूछते पापा घर में है, तो बच्चा क्या बोलेगा कि हाँ पापा घर में है, लेकिन वहां से पापा ने इशारा कर दिया, पापा जस्ट साइंस की से दैट आई एम नॉट देयर एट होम, सो द चाइल्ड नाउ सेज, he listens to you, obeys you and says कि अरे नहीं नहीं पापा घर में नहीं है। अब देखिए किसने सिखाया उसको झूठ बोलना, मैंने और आपने, पेरेंट्स। वी ट्रेन देम टू लाई। और यहाँ झूठ जो है ना हर गुनाह की जड़ है, सबसे बड़ी बीमारी। अभी हम नेक्स्ट आयत में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो हमने उसको झूठ बोलना सिखाया, अब जहाँ झूठ बोलना सिखाया फिर वहां पर डिसऑनेस्टी भी आ गई कि किसी ने कोई सामान आपके पास रखा और कल वापस लेने आया तो ही सेज कि नहीं आपने मेरे पास रखा ही नहीं, क्योंकि हमने झूठ बोलना सिखा दिया। उसके बाद उसने किसी से प्रॉमिस किया और आराम से वो प्रॉमिस तोड़ दिया, क्योंकि हमने उसको झूठ बोलना सिखा दिया। अब मुझे बताओ कि ये झूठ क्या सिर्फ दुनिया तक के लिमिटेड है या इसका असर आखिरत में भी होगा? बताइए। अभी हमने क्या पढ़े? झूठ बोलने वाला मुनाफिक कहाँ जाएगा? जहन्नुम के निचले आग में। या और वो चाहे अपने आप को मुसलमान भी कहता हो तब भी, isn't it? Yes. So what is the lesson we learned today? Before coming into Quran, ये सब आदतें मुझ में भी थी, लेकिन कुरान हाँ. में आने के बाद ये सब थोड़ा थोड़ा करके I try to restrain myself from all this. Yes, अल्हम्दुलिल्लाह। और यही एक मोमिन होने की निशानी है। देखिए कोई भी nobody is 100% good, लेकिन हमें कोशिश करते रहना है। और हमारी इस्लाह कौन करेगा? Who is going to guide us? Allah is guiding us. See, we asked Allah for guidance and Allah is already guiding us, that if you are speaking lie, if you are breaking your promises, if you are being dishonest, तो क्या होगा? तुम दुनिया में भी मुश्किल में पड़ोगे ना। दुनिया में भी मुश्किल होती है, पुलिस आती है और फिर केसेस होते हैं, झगड़े होते हैं, फसाद होते हैं, और आखिरत में तो तुमको जहन्नम का अजाब होगा। सो व्हाट इज अ बेटर ऑप्शन कि हम क्या करें? झूठ ना बोले, धोखेबाजी ना करे। डू यू नो कि व्हेन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत मिलने से पहले मक्का के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा मानते थे? उन्होंने उनको 2 लक़ब दिए हुए थे, 2 nicknames. Do you know what were those nicknames of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam before his nabuwat itself? About his character. Yes, tell me, Anam. I know one which is as-sadiqun, the truthful one. Okay. Let me also ask, we have Dr. Humaira Nawaz. Sadiq and Amin. Sadiq and Amin, you're right. Alhamdulillah. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 2 लक़ब मिले हुए थे, सादिक और अमीन। सादिक का मतलब होता है सच्चा, हमेशा सच बोलने वाला। अमीन, द ट्रस्टवर्दी पर्सन, ऑनेस्ट। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम was the most truthful one and he was the most trustworthiest one, the honest one. तो हम तो कहते हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है। अब चेक करो कि क्या हमारे अंदर पहले ये 2 क्वालिटीज है। I have to check myself and you have to check yourself. और अगर नहीं है, अगर हम झूठ बोलते हैं तो फिर हम कौन सी कैटेगरी में आ गए? मुनाफिक की कैटेगरी में आ गए। अल्लाहु अकबर। एंड डू यू नो कि मुनाफिक के बारे में अल्लाह ताला अभी हमें आयत नंबर 8, we have just started, ayat number 8 till ayat number 20 we are going to read about मुनाफिकीन। मुत्तकीन की सिर्फ 5 आयत थी और काफिरीन की 2 आयत, और अभी मुनाफिकीन की 8 to 20 ऑलमोस्ट
13 आयत वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मुनाफिकीन। तो इसके बारे में इतना क्यों अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं? बिकॉज ये सारे ट्रेट्स, ये सारी बुराइयां माहौल से हमारे अंदर आ गई है। ऑल्सो क्योंकि हमने कुरान को खोला ही नहीं, अगर खोलते भी है तो वी ओनली रीड इट इन अरबिक, हमने उसको समझा ही नहीं, उसका हक ही अदा नहीं किया। इसीलिए इस्लाम हमारे अंदर कहाँ से आया, इस्लाम हमको कहाँ से मिला? डू यू नो अनम? हमको इस्लाम कुरान से मिला ही नहीं, हमको इस्लाम मिला है हमारे माहौल से, फ्रॉम आवर सोसाइटी। And because we have not got Islam from the Quran, that is why we got it in a mixed form from our society. Because in our society, we see there are people with different religions and different faiths and different cultures. So we have got it all in the mixed form, hybrid form. And we have not got the actual original Islam from Quran. अब जो है ना हमको कुरान, जब कुरान से हमको इस्लाम मिलेगा तब हमें पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या क्या बुराइयां आ गई है, और अल्लाह ताला एक एक चीज पर हमें गाइड करेंगे इंशाल्लाह। So as per the guidance, as per the ayat, we will check ourselves and inshallah we will keep on correcting ourselves, isn't it? So ये थी आयत कि ये तो धोखेबाज होते हैं, झूठ बोलते हैं, एक्चुअली इनके दिल में ईमान है ही नहीं। किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? हिपोक्रेट्स, मुनाफिक। हिपोक्रेट्स, मुनाफिक, राइट। अब मुनाफिक भी 2 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 मुनाफिक, मुनाफिक एतकादी मुनाफिक। नंबर 1 एतकादी मुनाफिक, इंग्लिश में हम कहेंगे इन देयर बिलीफ, they are munafiq in their belief, hypocrites in their belief. Number 2 अमली मुनाफिक, नंबर 2 अमली मुनाफिक, यानी वो अमल से धोखेबाज है, मुनाफिक है। that is मुनाफिक इन एक्शंस, पहला वाला बिलीफ में ही गड़बड़ है, ईमान ही नहीं है, और दूसरा वाला अगर ईमान है भी तो इतना कच्चा है कि अमल नहीं कर पाते। So that also we have to check कि हमारा, अगर हमारे अंदर, मेरे अंदर मुनाफिकत है। देखिए what happens, जब हम ऐसी आयतें पढ़ते हैं ना तो हमारे दिल में ख्याल आते हैं दूसरों कि वो मेरी देवरानी है ना, मुझे तो लगता है वो ही मुनाफिक है। That friend of mine, I think she is munafiq. So when we point one finger at somebody, remaining 4 fingers point to whom? When I point at somebody, remaining 4 fingers are pointing at myself. बाकी की 4 उंगलियां मेरी तरफ आ रही है। तो जब मैं कुरान पढ़ रही हूँ तो मुझे अपने आप को चेक करना है। कुरान इज अ मिरर, ये आईना है, आईना। आईने में कौन नजर आता है नम? तुम आईने के सामने खड़ी होगी, यस, तुम आईने के सामने खड़ी हो और तुम अपना चेहरा देख रही हो, और अगर तुम्हारे चेहरे पे एक फुंसी है, एक दाग है, तो तुम्हारा दाग तुमको नजर आ रहा है, तो तुम उसको क्या करते हो? यू ट्राई टू करेक्ट योरसेल्फ, इजंट इट? Yes. अगर आप एक शर्ट पहन के खड़े हो मिरर के सामने, तो आपको नजर आए कि बटन्स आपने ऊपर नीचे लगाए हो, तो आप क्या करते हो? बोलते हो जाने दे, छोड़ दे। No, you'll fix it. You'll fix What it. do? You fix it. Exactly. So Quran is a mirror for myself. सबसे पहले मैं जब एक आयत पढ़ रही हूँ तो मुझे अपनी गलतियां नजर आए और फिर मैं अपने आप को करेक्ट करूं। यही है हिदायत, यही है तौफीक। हमारी प्रॉब्लम तो उल्टी है, हम तो दूसरों को ही पहले उस पर मेजर करने लगते हैं और दूसरों को जज करना शुरू कर देते हैं। So we have to judge ourselves, correct ourselves, इंशाल्लाह। ओके, फिर हम लोग नेक्स्ट आयत पर चलते हैं। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गई बात? जी हाँ, है ना? So we move on to the next आयत, और वो है युखादिऊन अल्लाह। आयत नंबर कहाँ गया? 9।
आयत नंबर 9, युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह को। खादा वर्ड है इसमें, खादिऊ, वो धोखा देते अल्लाह को, ये हिपोक्रेट्स अल्लाह को धोखा देते हैं। वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को भी जो ईमान लाए। अभी क्या कोई धोखा दे सकता है अल्लाह को? नहीं दे सकता। सो वी हैव टू ऐड सम वर्ड्स हियर कि वो समझते हैं, they assume, they think that they are cheating or deceiving Allah. कैसे अल्लाह को चीट कर रहे? कि जबान से बोल दिया कि हाँ हाँ हम मुसलमान हैं, बट दिल में ईमान है ही नहीं, दिल में तो धोखेबाजी है। तो इस तरह they think that they are cheating Allah, and whom are they cheating? अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए उनको भी धोखा देते। अब ये तो उनके बारे में। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा यखदऊना, अल्लाह ताला सेज, और नहीं वो धोखा देते। ये माँ जो है ना वो कौन से फॉर्म में है? नहीं। और नहीं वो धोखा देते, इल्ला, सिवाय, अनफुसहुम, अपनी ही नफ्सों को। एक्चुअली वो किसको चीट कर रहे हैं? दे आर चीटिंग देमसेल्व्स। They cannot cheat Allah. They cannot cheat Momin. Whom are they cheating? They are cheating themselves. वमा यशउरून, और नहीं वो शऊर रखते। And they don't even understand. They don't even perceive that वो खुद को ही धोखा दे रहे। Got it? Yes. अभी हाँ, तो ये कौन, किसकी बात हो रही है? अभी भी वी आर स्टडीइंग अबाउट मुनाफिकून, हिपोक्रेट्स, और वो अल्लाह को धोखा दे ही नहीं सकते। क्यों? बिकॉज अल्लाह को तो उनके दिलों का हाल पता है। अल्लाह नोज व्हाट दे आर हाइडिंग इन देयर हार्ट्स। In the Quran we read it many times that Allah Ta'ala says that Allah knows whatever you hide in your hearts and whatever you express. Everything Allah तो knows. तो फिर किसको धोखा दे रहे हैं? अल्लाह को तो दे ही नहीं सकते। यस, एंड मोमिनों को धोखा देंगे भी तो मोमिनों को क्या फर्क पड़ता है? मोमिन अगर सोचेगा कि अच्छा हाँ हाँ ये भी मुसलमान है, तो किसी और को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है आपके ईमान लाने से, तो उसको भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यू आर एक्चुअली फूलिंग योरसेल्फ and they become the victim of their own plots. अपनी ही चाल में खुद फंस जाते। Why? Because they take oaths, they pledge, and all their oaths are a lie, a big lie. Okay, Allahu Akbar. तो ये है dishonesty of मुनाफिकून। यहाँ तक हमने आज पढ़ा। So we have come to the three categories: मुत्तकी, काफिरीन एंड मुनाफिकीन, द हिपोक्रेट्स। इंशाल्लाह हिपोक्रेट्स के बारे में और आयतें हम पढ़ेंगे, कल की क्लास में होगा इंशाल्लाह। सो टुडे वी कैन हैव सम रिफ्लेक्शंस, व्हाटएवर यू हैव स्टडीड, आप जल्दी से शेयर कर सकते हैं। काइंडली रेज योर हैंड्स। अनम, व्हाट हैव यू लर्न टुडे? One thing that I learned is that जो आप करते हो या नहीं करते हो, अल्लाह ताला knows what lies in the hearts. So instead of like doing things, just like it's better to clean our hearts, अपने आप पे reflect करना है, and before teaching anyone else, we should see ourselves where we're going wrong, where we're lying, and try to correct that. Inshallah. इंशाल्लाह। ओके अनम। चांद आंटी, one point. Yes. 3 signs of मुनाफिक जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम has made it very clear. First is वो बोले तो झूठ बोलते हैं, वो वादा करते तो वादा तोड़ते हैं, और उनको अमानत दो तो अमानत में खयानत करते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगी ये हमको बोलना है। ओके, आज से मैं क्या करूंगी? Refrain ourselves from all these things. इंशाल्लाह। यस यस, शाहीन आप बोले। Yeah, first we have to check ourselves. That's very important. In which category do we come into?
And Yes. फिंगर पॉइंट का आपने बहुत अच्छा बोला कि दूसरों पे उंगली उठाने से पहले हमको पहले हमारे गिरेबान में झांकना चाहिए. हैव टू करेक्ट आवरसेल्व्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउडेज. Yes. सब बोलने को हमको इंशाल्लाह. इजी है दूसरों पे. हाँ. बीसिया से बराबर है. Yes. आमीन. Yes, अंजुम आप बोले. अस्सलाम वालेकुम. हमको मुनाफिक से बचना है और झूठ वगैरह से भी कोशिश करते हैं कि नहीं बोले. कुरान ये सब सुनने के बाद में बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत चेंजेस आई है. और अल्हम्दुलिल्लाह ये अमानत में भी खयानत का ध्यान रखना है. किसी की रखी हुई चीज का हमको मुनाफिक नहीं बनना है. कोशिश करना है कि हम अपने ईमान पे कायम रहे. इंशाल्लाह. आमीन. अफशान. यस. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. बजाय इसके कि हम सलाम. अगर किसी पे कुछ करेंगे तो समझो एक उंगली हम उस पे उठाएंगे तो 4 हम पे उठेगी. तो कोशिश हमें यही करना चाहिए कि हम वो काम करें कि जो मुनाफिक हम तो नहीं, हम किसको दे रहे हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं. और मुनाफिक वही है, क्योंकि अल्लाह तो सब जानता है. अगर हम नमाज पढ़ रहे हैं और वो कर रहे हैं, मगर अल्लाह हमारी नीयत जानता है. इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए आज से, इस अल्लाह का शुक्र जब से ये क्लास शुरू हुई है, हम अपने आप को टटोलें तो उसमें हमारा ही फायदा है. इंशाल्लाह. आमीन. आफरीन शाहीन. यस, शाहीन खतीब. जी, किसी के बोली हुई 2 लाइन्स याद आई इस बात पे कि जिंदगी में एक ही गलती दोहराता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा. आई यूज्ड टू पॉइंट आउट एट अदर्स एंड आई डिड नॉट रियलाइज कि मैं जो दूसरों को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, दूसरों पर पॉइंट आउट कर रहा हूँ, तो मैं खुद भी गलत काम ही कर रहा हूँ. ये चीज इंसान अक्सर भूल जाता है. जी, सही बात है. अल्हम्दुलिल्लाह. Yes, and Dr. Nazima, I have my friend Dr. Nazima. वो खुद भी कुरान पढ़ाती है every day. Alhamdulillah. I would like to take a reflection and some encouragement from her side. Quick. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walaikum salam. Word of encouragement is always inspiration for me. अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा लगता है सुन के. सॉरी बहुत लेट मैंने आज ज्वाइन की थी, मतलब बहुत दिनों बाद आज फर्स्ट टाइम मैं ज्वाइन कर पाई. इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू कंटिन्यू. एंड जैसे बहुत इम्पोर्टेंट बात तुमने कही कि इट्स अ मिरर, कुरान इज अ मिरर. तो मैंने इस मिरर में अल्लाह ताला ने मुझे 3 कैटेगरी दिखाई. मैंने अपने आप को उसमें चेक करना है एंड करेक्ट करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे अंडरस्टैंड करके डिसाइड करना है कि यस मुझे मुत्तकी कैटेगरी में जाना है. सो व्हाट आर द फ्लॉज, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच आर रॉन्ग, वो मुझे करेक्ट करनी है इंशाल्लाह, और अपने आप को मुत्तकी कैटेगरी में फिट करना है. सो इंशाल्लाह. फॉर द रिमाइंडर एंड अल्लाह तुमको दे, इंशाल्लाह हमको अमल की तौफीक दे. आमीन. जज़ाकल्लाह. आमीन. जज़ाकल्लाह खैरा. यस, रईसा आपा. अस्सलाम वालेकुम हाँ, वालेकुम सलाम. मेरा ये बोलना है कि हम इतनी बातें सुनते हैं. अभी हम लोग यहाँ कुरान की क्लास में बैठे हैं या हम जहाँ कहीं सुनते हैं, उस वक्त मैं चाहूंगी कि सिर्फ थोड़ी देर के लिए हमको ये एहसास ना हो और ये हम जिंदगी में अमल लाए. इंशाल्लाह हम लोग यही कोशिश करना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि हम लोग जो आज दुनिया में देख रहे हैं, तो मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि सिर्फ कुरान की क्लास में नहीं, या हम जो सिर्फ पढ़ रहे हैं उस वक्त के लिए ना कायम करें, अमल को जिंदगी भर में कायम करने की कोशिश करें. इंशाल्लाह. इंशाल्लाह. जज़ाकल्लाह खैर. यस, निशात. क्विक. Baji, we are very quick to judge other people, but today, as we explained, so we should first look into ourselves, and before pointing fingers, we have to see what is going wrong within us. But human nature is such that we judge, but inshallah in future I'll try not to be so judgmental and first rectify myself before, or rather not rectify other people, just look into myself. इंशाल्लाह. आमीन. जज़ाकल्लाह खैर. और कोई क्विक रिफ्लेक्शन शेयर करना चाहता है? उसना बाजी. जी बाजी, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो मुनाफिकीन की आयतें शुरू हो गई है, इसमें हमको अपने आप को ही ढूंढना है. तो ये बहुत ही अभी खुली किताब है. इसको हमें इसको अच्छी तरह से समझकर हम में है या नहीं वो देखकर, वो होती है कुछ ना कुछ उसमें हमारी खसलतें, हमारी आदतें, तो हमको उसको निकालनी है ताकि हम अच्छे मोमिन बन सके. जी
इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैरा। उसना बाजी भी हमारी को टीचर है और हमारे जो टीचर्स है ज़ैनब बाजी, रज़िया बाजी, उन्हीं से हमने सीखा है। देन डॉक्टर फरहत हाशमी साहिबा एंड माशाल्लाह माय पेरेंट्स। हम एवरी डे इज अ लर्निंग प्रोसेस। जितना हम सीखेंगे और अमल में लाएंगे, अल्लाह ताला हमारी इस्लाह करेंगे और बिल्कुल हमारे अमल में चेंज आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस इंटेंशन के साथ ही हम बैठेंगे कि आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ थ्रू द गाइडेंस ऑफ अल्लाह, थ्रू कुरान। दैट्स इट। अल्हम्दुलिल्लाह। यस फाइजा। Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम फाइजा। It's not about the reflection. Sorry, मेरे पास एक question था सर. Yes. Actually, I make my notes और आप जो screen share करते हैं, so I try to write each and every word. And unfortunately, आज वो नहीं हो सका. So Today there was some problem. Yeah. Tomorrow again because I have to write it. Yes. So inshallah today in the group. Are you there in the group, Faiza? Okay. Thank you. Jazakallah. Are you there in the group, Faiza? Yes, I am there. So we will share those posters in the group so that you can make the notes inshallah today itself. Right away I will post it. Okay? Jazakallah. Yes. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। हम नियत करते हैं इंशाअल्लाह कल ट्यूसडे 5 to 6 UK टाइम एंड 9:30 to 10:30 इंडिया टाइम वी विल ज्वाइन। अगर आप में से कोई न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं आज, तो काइंडली कनेक्ट विथ मी और निशात और शमीम। निशात काइंडली शेयर दैट स्क्रीन अनम विद द नंबर्स so that people can connect with us. आप लोग मुझसे चैट करते हो और वॉइस मैसेजेस भी शेयर करते हो। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैरा। बिकॉज इट इज अ 2-way प्रोसेस, लर्निंग कैन नॉट बी 1 way। तो हमको एक दूसरे के साथ कनेक्शन बढ़ाना ही होगा। यू कैन ऑलवेज आस्क मी एनी क्वेश्चंस, क्वेरीज, और कोई एडवाइस है, कोई इफ यू वांट सम चेंजेस इन द क्लास, तो आप जरूर अपना फीडबैक भी मुझे भेज सकते हैं। माय नंबर विल बी शेयर्ड ऑन द स्क्रीन। हु इज शेयरिंग? निशात और अनम, काइंडली शेयर क्विकली। और जो लोग न्यू ज्वाइन हुए हैं आज, अगर आप लोग हमारा ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तभी भी आप मैसेज कर दीजिए। Who is sharing the screen? Why are we not able to share the screen today? Any issues? I don't have the poster. I'm just looking for it. Give me a minute. Oh, we are getting very late. हमारी क्लास 6 बजे खत्म हो जानी चाहिए थी। हाँ, yeah. You can take the screenshot of these phone numbers so that you can connect with us. Okay, I will still keep it here for a minute and then we leave. Jazakallah khaira, my dear co-hosts and all my dear students. अल्लाह ताला हम सब की तमाम दुआओं को कबूल फरमाए और हम सबको नेक अमल की तौफीक अता करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।